Welcome everybody. In today's session, we are going to discuss some introductory part of your anatomy physiology. It is not much important for your GPAT exam, NIPER exam, but it is important to understand the subject. Okay, so introductory part of anatomy physiology is important to understand the subject, to understand the things which are very important, which are we are going to cover in the subject. कि anatomy physiology में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, वो आज हम देखेंगे ताकि आपको वो सब्जेक्ट समझ में आए। आपको हर एक सिस्टम के बारे में समझने के लिए हर एक सिस्टम का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है। सो दैट विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। सो इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी फिजियोलॉजी। सो we will try to cover a quick review of your anatomy physiology in this lecture. The chapter is not much important for GPAT. Even you can say it is not at all important for GPAT. But whatever it will be the second lecture, second demo lecture will be on a chapter known as blood. So that is important for your GPAT, NIPER, drug inspector and pharmacist exams. So that will be a very important lecture, second demo lectures. So this is just a introductory lecture for anatomy physiology. So first of all, what do you mean by anatomy and what is physiology? Okay, so first of all, we human being, our body is nothing but the highly sophisticated technical living system. Okay, so it is not a machine. High technical sophisticated living, it is a living system. It operates as a single entity. If you see from outside, it look as a single entity, but it has a very complex different system working together or different system working interdependently. ठीक है, अपना एक जो बॉडी है वो एक बहुत ही भगवान ने दिया वाला एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हाईली टेक्निकल एक सिस्टम है, लिविंग सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या है कि अपने को सिर्फ एक ही दिख रहा है, क्या, बॉडी। ठीक है, बॉडी दिख रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। दे आर वर्किंग टुगेदर, दे आर इंटरडिपेंडेंटली, एक में के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे सब सिस्टम है। वो सब पूरा सिस्टम मिला के आपका ह्यूमन बॉडी बनता है। ठीक है, सो ह्यूमन बॉडी इज हाईली टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड लिविंग सिस्टम that operates as a single entity but made up of a different system working interdependently. First of all, what is anatomy? So anatomy, what do you mean by anatomy, what do you mean by physiology? There are few basic terms like anatomy. So study of structural features of the body, study of structure of body and its physical relationship with the other constituent. So whatever structure you are studying, so that will be covered under anatomy term. So the term anatomy itself indicate the structural feature of the structural feature of the cell, structural feature of the tissue, structural feature of the system. Right, now another term is there, physiology. What do you mean by physiology? So physiology is nothing but the how that particular cell, how that particular tissue, how that particular system it works. ठीक है, सो एनाटॉमी किसके लिए है? जो स्ट्रक्चरल फीचर होता है आपका सेल का या फिर टिश्यू का या फिर आपके सिस्टम का, तो उसका स्ट्रक्चरल फीचर के लिए अपन बोलेंगे एनाटॉमी। एंड जो फंक्शनल फीचर होता है, जो फंक्शन वर्किंग कैसे होता है हर एक सिस्टम का, हर एक सेल का, हर एक टिश्यू का, so that will be covered in the physiology. So anatomy is nothing but the structure of body and its physical relationship with the other constituent. Physiology is nothing but the how that structure, how that tissue, how that cell or how that function used to work. That is nothing but the physiology. Now there is another term known as a pathology. So what is pathology? Pathology is nothing but the abnormalities of functioning, abnormalities of your anatomy or abnormalities of your physiology. So anatomy का या फिर physiology का जो भी abnormality हो गया तो उसको अपन बोलेंगे pathology. ठीक है, now there is another term known as a pathophysiology. There is another term known as a pathophysiology which includes how these abnormalities will affect the body function. ठीक है, जो पैथोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी हुआ है आपके एनाटॉमी के लिए, एनाटॉमी में या फिर फिजियोलॉजी में, मतलब जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हुआ है आपके स्ट्रक्चर में या फिर उसकी फंक्शनिंग में, तो वो कैसे अफेक्ट करेंगे आपके सिस्टम के ऊपर। सिस्टम का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, उस फंक्शन को कैसे अफेक्ट करेंगे, तो दैट विल बी डिस्कस्ड अंडर द पैथोफिजियोलॉजी. सो देयर आर टर्म्स एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी. Okay, there are some basic terms, you might be aware of this. This term pathophysiology is mostly related with the illness. Okay, so the factors causing illness, those are covered in the pathophysiology. कि आपकी तबीयत खराब होने के लिए, आपको डिसीज पैदा करने के लिए, आपका बीमार बनाने के लिए जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज. ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी इज नथिंग बट द
sophisticated living system, sophisticated, highly organized, highly technical, sophisticated living system. Now this system becomes less efficient during aging. ठीक है, जैसे जैसे आपका एज होता है, जैसे आप अभी मेरा एज है 32, आपका एज में भी अराउंड 25-26 हुआ, जो आप में जो इफिशियंसी, आप जितना भाग सकते हो, आप जितना इफिशियंटली कुछ भी काम कर सकते हो, so that efficiency will not be equal to the the person who is around 68 60 और 70 एज, जिसका 70 या 60 एज होगा, उसकी इफिशियंसी और आपकी इफिशियंसी में जमीन आसमान का फर्क होगा कि आप 10 मिनट में कितनी देर भाग सकते हो, एक बूढ़ा आदमी नहीं भाग सकता. सो दैट इज सिस्टम बिकम्स लेस इफिशिएंट विथ एजिंग. ठीक है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पूरा बॉडी इफिशियंसी जो है बॉडी का वो कम होते जाएगा. दैट इज नोन एज अ सिस्टम बिकम लेस इफिशिएंट ड्यूरिंग एजिंग. नाउ नेक्स्ट वन इज ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. सो ह्यूमन बॉडी इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कॉम्प्लेक्स सिस्टम. So it is not a just single system, it is a complex system made up of a different system and different system having different structure having different functions. ठीक है, हर एक सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है और हर एक सिस्टम का फंक्शन भी अलग होता है, तो ये सब सिस्टम मिला के ह्यूमन बॉडी बनता है. ठीक है, नाउ फर्स्ट व्हाट इज सेल. सो सेल इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर. सो देयर आर अराउंड 1 ट्रिलियन ऑफ सेल इन योर बॉडी. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल which will have a specialized function to carry out the body's need. ठीक है, हर एक सेल क्या होता है, it is a unit structure of your living organism. मतलब that might be either microbe, that might be either plant or that might be either your humans. okay, plant cell हो सकता है, microbial cell हो सकता है, या फिर अपना humans का cell हो सकता है. So but that is nothing but the structural and functional unit of organism. okay, structural and functional unit of organism is nothing but the cell. And each cell has a specific function. हर एक सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है. फॉर एग्जांपल आपका नर्व सेल हो गया. सो नर्व सेल हैज अ फंक्शन ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. ओके, सो कार्डियक सेल विल हैव अ फंक्शन ऑफ contraction relaxation. Muscle cell will have a function of contraction and relaxation. So likewise that. So each and every each and every cell will have a different function, which is the smallest unit of living matter. Now tissue, what is tissue? Tissue is made up of a group of cell having similar structure and function. अभी ये जो सेल होते हैं, हर एक अलग अलग टाइप के सेल होते हैं. नर्व सेल हो गया आपका, कार्डियक सेल हो गया है ना, आपका मसल सेल हो गया. तो एक जैसे सेल का अगर ग्रुप बना के रह रहे हो, ठीक है, सो ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स और सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन, सो दैट इज नथिंग बट द टिश्यू. सो टिश्यू इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन. फॉर एग्जांपल नर्व टिश्यू. नर्व सेल क्या है, नर्व सेल इज नथिंग बट योर आपका जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन, सो दैट इज अ नर्व सेल. बट आपका जो पूरा नर्व होता है, एक नर्व, सो नर्व इज नथिंग बट द टिश्यू. सो नर्व में क्या है, डिफरेंट n नंबर ऑफ नर्व सेल होता है. नर्व सेल बहुत उसका नर्व सेल का ग्रुप होता है और वो ग्रुप दैट इज फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. सो दैट इज नोन एज अ टिश्यू. सो टिश्यू इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. फॉर एग्जांपल नर्व टिश्यू, ब्रेन, या फिर आपका आप नर्व फाइबर भी बोल सकते हो, नर्व फाइबर बोल सकते हो, या फिर आप ब्रेन भी बोल सकते हो, या स्पाइनल कॉर्ड भी बोल सकते हो. So all these are the example of tissue. ठीक है, so first cell, then tissue, now then organ. Okay, next one is the organ. So what is organ? Again जैसे बहुत सारे similar type के सेल अगर एक जगह पे होंगे तो उसको बोलेंगे टिश्यू. ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू बन के बनता है आपका ऑर्गन. सो ऑर्गन इज मेड अप ऑफ different types of tissue to carry out specific function in the body. ठीक है, जैसे ये ऑर्गन टिश्यू हो गया. टिश्यू के अगर सिमिलर टिश्यू है, ठीक है, और बहुत सारा टिश्यू का बंच है तो उसको बोलेंगे ऑर्गन. फॉर एग्जांपल ब्रेन एंड स्टमक इज ऑर्गन, ब्रेन इज आल्सो. नेक्स्ट वन इज द सिस्टम. Next one is the system. So what do you mean by system? First cell. So it is nothing but the level of hierarchical level of your body. पहले आपका सेल होता है, सेल के बाद में बहुत सारे सेल, सिमिलर सेल आके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे सिमिलर टिश्यू आके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे
बहुत सारे ऑर्गन जो है वो बनाते हैं आपका सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन आपका बनाते हैं सिस्टम। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है कि आपका डाइजेशन करना, ठीक है, डाइजेशन करना फंक्शन है। लेकिन उसमें आपका स्टमक आएगा, आपका इसोफेगस आएगा, उसमें आपका लिवर आएगा, उसमें आपका गॉल ब्लैडर आएगा, ठीक है। सो सिस्टम इज नथिंग बट द when similar kind of organs they comes together to perform a specific function. So that is nothing but your system. We have seen what is human body, anatomy, physiology, pathology, pathophysiology, then cell, tissue, organ, system. Okay. For example, you can see on the chemical level or at the chemical level, so different kind of atoms are there in the environment. So from that atoms, molecules are developed, and from molecules they are the basis for a cell. Cell. Okay. So पहले एटम होते हैं, एटम से फिर मॉलिक्यूल बनता है, उससे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से वो एक सेल बनता है, ठीक है। सो इट इज अ सेल। फॉर एग्जांपल इट इज अ स्मूथ मसल सेल, ठीक है। अभी इसी इसी काइंड के सेल अगर ग्रुप में होंगे तो उसको बोलेंगे टिश्यू। सो दिस इज अ टिश्यू। टिश्यू विल हैव डिफरेंट number of similar kind of cells, right? Now from tissue you get a organ, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू अगर एक साथ होंगे तो उसको बोलेंगे ऑर्गन। फॉर एग्जांपल दिस इज स्टमक। स्टमक के अंदर स्मूथ मसल का लेयर होता है। सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू, ये टिश्यू काय के लिए, फॉर डाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट काइंड के टिश्यू, यहाँ पे लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, और ठीक है, ये सब बना के बनाएंगे ऑर्गन। सो दैट इज नथिंग बट द स्टमक। ओके। सो सेल, टिश्यू, ऑर्गन। नाउ ये स्टमक इज ऑर्गन। सो उसी काइंड के दूसरे उसी तरीके के दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपका लिवर हो गया, इसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो ये सब मिला के आपका एक सिस्टम बनाते हैं। सो दैट इज नथिंग बट द डाइजेस्टिव सिस्टम। फॉर एग्जांपल mouth is one organ, then salivary gland is another, pharynx is organ, liver is organ, then stomach, small intestine, large intestine. सिमिलर काइंड के सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, सिमिलर काइंड के टिश्यू वो ऑर्गन बनाते हैं, और स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आपका एक सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे सिस्टम मिला के आपका क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स, वेल ऑर्गेनाइज्ड, हाईली टेक्निकल, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स विच आर वर्किंग इंटरडिपेंडेंटली, ठीक है। इसमें बॉडी में आपके बहुत सारे सिस्टम होंगे जो इंटरडिपेंडेंट होंगे, वो काम करते होंगे इंटरडिपेंडेंट। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसके बाद आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। सो दे आर वर्किंग टुगेदर। डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, नर्वस सिस्टम है, दे आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका आपका एंडोक्राइन सिस्टम, इंटरलिंक। सो दिस इज जस्ट ओवरव्यू ऑफ योर system. Now second, so there are two, now see this system, so within the system आपके बॉडी के अंदर जो है, विद इन द योर बॉडी, दैट इज नोन एज इंटरनल एनवायरनमेंट, एंड बॉडी के बाहर जो है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है आपका, सो दैट इज नथिंग बट द एटमॉस्फेयर। बॉडी के बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या होगा, एटमॉस्फेयर में आपका एयर है, ठीक है, एयर में, ठीक है। सो आउटसाइड द बॉडी दैट इज अ external, outside the body that is a external environment, and inside the body that is the internal environment. अभी internal environment and hemostasis, ठीक है। internal environment क्या है बॉडी के अंदर, और hemostasis. So you might be encounter a lot of time in your B.Pharm the term hemostasis. आपके B.Pharm में पूरे साल बहुत बार ये टर्म आएगा, hemostasis. So what do you mean by hemostasis? एक ना एक छोटा छोटा टर्म समझ के लेंगे। So hemostasis क्या होता है, ओके। सो हीमोस्टेसिस मीन्स जो भी आपके सिस्टम से, ठीक है, जो भी आपके सिस्टम है बॉडी के अंदर, दे आर वर्किंग टू ए पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। उनका एक ऑप्टिमम लेवल होता है, मतलब ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्लड प्रेशर होता है आपका 120/80, नॉर्मल ब्लड प्रेशर उसी रेंज में होना चाहिए। सो दैट इज अ हीमोस्टेसिस। उसके से कम होगा, उससे ज्यादा होगा, दैट इज अ पैथोलॉजी, ठीक है। Hemostasis means optimum. What is optimum? So, so internal environment and hemostasis. We'll see it. So what is, so external environment surrounds the body. Body के बाहर कौन सा है, surrounding में external environment है। For example, in the external environment there is a oxygen. Oxygen is around 21% in the atmosphere. याद रखो
ऑक्सीजन कितना है एटमॉस्फेयर में 21%, नाइट्रोजन होता है तकरीबन 80%। ओके, बाकी बस गैसेस निग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, नाउ दिस एयर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फॉर द बॉडी। आपके बॉडी के लिए ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का सोर्स क्या है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, आप जो खाना खाते हो वो बाहर से आता है, आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनता। आप जो ऑक्सीजन लेते हो वो बाहर का ही है। ठीक है, सो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट दैट इज अ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ओके, फॉर द बॉडी। एंड again the waste product from the body or cellular metabolism is again excreted in the environment। कि आपकी बॉडी बाहर से ही लेगी, क्या लेगी, सोर्स क्या लेगी, ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए बाहर से ही लेगी ऑक्सीजन। जिंदा रहने के लिए आपका जो खाना है, जो फूड है, वो भी बाहर से लेगी, अंदर लेगी फूड और ऑक्सीजन, उसको मेटाबोलाइज करेंगी, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, उसका यूटिलाइजेशन होगा, एटीपी बनेगा, और बाकी का जो यूजलेस है दैट इज अ सेलुलर वेस्ट दैट विल बी अगेन dispatched in the environment। ठीक है, so oxygen and nutrient will be taken from the environment and waste product will be again sent to environment। So that is the external environment। Now what is internal environment? So internal environment of the body is a water based medium। बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट क्या है, इट इज अ वाटर बेस्ड मीडियम इन विच बॉडी सेल्स बाथ। ठीक है, बॉडी के जितने भी सेल्स है वो सब आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में, ठीक है, आपके अंदर है, बॉडी के अंदर। तो वो कहाँ पे है, दैट इज नोन एज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, that is known as an interstitial fluid। So whatever fluid is there in between the cells, in between the tissues, that is known as a interstitial fluid, inter interstitial fluid। ठीक है, विच क्या, ठीक है, इसमें क्या होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इसमें तकरीबन तकरीबन वाटर होगा, मैक्सिमम 70% वाटर ही रहता है इसमें। और बाकी क्या रहता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, आपका जो भी ब्लड से जो भी न्यूट्रिशन होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल का, सो सेल न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा। ठीक है, सेल तो ओपन नहीं है बाहर, सेल तो अंदर है बॉडी के। सो interstitial fluid is bathing the cells, cells are bathed in the interstitial fluid। okay, that interstitial fluid is useful for the cell to get nutrition। तो वहां से ही वो सेल न्यूट्रिशन लेगा, और जो भी सेल का बाय प्रोडक्ट होगा या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो भी वहां पे छोड़ देगा। सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाटर, then nutrition, then vitamins, then all that plus waste product। okay, so that is interstitial fluid। Cells can absorb oxygen, nutrition from the interstitial fluid। Interstitial fluid itself gets oxygen and nutrition from blood and deposit cellular waste in the blood। ठीक है, तो क्या होता है कि आप जो भी ऑक्सीजन लेते हो, जो भी आप बाहर से फूड लेते हो, वो सब डाइजेस्ट होके आपके ब्लड में जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी एक्सचेंज होके ब्लड में जाता है। तो वो ऑक्सीजन है ब्लड में, न्यूट्रिशन है, फूड है, आपके विटामिन है, मिनरल्स है, उसके बाद में आपका ग्लूकोज है, ये सब आपका एनर्जी सोर्स आपका ब्लड में है। ठीक है, आपका सेल, हर एक सेल के पास तो ब्लड नहीं जाता, तो आपका हर एक सेल के लिए आप कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रॉम दैट न्यूट्रिशन, फ्रॉम ब्लड न्यूट्रिशन एंड गैसेस फ्रॉम द ब्लड, दे आर एक्सचेंज एट द इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एक्सचेंज होता है, और वहां से आपका सेल को मिलता है। और सेल आपका मेटाबोलाइज, सेल आपका खुद का काम करके जो भी लगता है वो लेता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहाँ पे छोड़ देता है। फिर से वो जो वेस्ट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वो जाता है ब्लड में, और ब्लड में से एक्सक्रीटरी सिस्टम को। सो दैट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। नाउ सेल, सिंगल सेल इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है, विच इज अ बैरियर फॉर substances entering inside the cell and leaving the cell। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर है सेल के ऊपर, बैरियर ओवर द सेल which will prevent the entry of certain molecules inside the cell and also prevent the exit of intracellular molecule towards the interstitial fluid। okay, so the plasma membrane is a selective in nature। so it is a selective in nature, it has a selective permeability। so depending upon the molecular weight, then size, then lipophilicity, solubility of particular compound or particular substance, so plasma membrane will either permit that molecule inside the cell or permit that molecule from inside the cell to the outside the cell। so that depends upon the its chemical properties, physical chemical properties।
So though that's why plasma membrane it is known as a semi-permeable membrane. It has a selective permeability toward the molecules. That's why intracellular and interstitial fluid composition is different. ठीक है? So intracellular fluid का composition अलग है और interstitial fluid का composition अलग है. Intracellular मतलब सेल के अंदर जो fluid है उसको बोलेंगे intracellular fluid. उसका composition अलग है और interstitial fluid जो है उसका composition अलग है. क्यों? Because there is a plasma membrane in between these two. Okay. Now this is very important because most of the ADME process, absorption, distribution, metabolism, absorption process is mainly dependent on this plasma membrane. So that will be a part covered in the when we will take a first lecture of pharmacology. Homeostasis control mechanism. ठीक है? Homeostasis मतलब क्या? To maintain. यहाँ पे देखो यहाँ पे term आएगा. Homeostasis means to maintain. What to maintain? What is the normal? That is to be maintained in the body. नॉर्मल जो भी है आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर आपका, सो ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल कितना होना चाहिए 120/80, तो दैट इज होमियोस्टेसिस. होमी मींस रेजिस्टेंट टू द चेंज, चेंज को रेजिस्टेंट करने वाली, या फिर टू मेंटेन अ कांस्टेंट. होमियोस्टेसिस टू मेंटेन अ कांस्टेंट, जो बॉडी का सिस्टम है उसको कांस्टेंट ठीक करते हैं, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं होना चाहिए. दैट इज अ होमियोस्टेसिस. सो हाउ इट इज कंट्रोल्ड, कि हर एक होमियोस्टेसिस का कंट्रोल कैसे होगा, सिस्टम का कंट्रोल कैसे होगा. सो कंपोजिशन of internal environment is always kept constant. Composition of internal environment is always kept constant. That is nothing but the homeostasis. Okay. For example, blood pressure. Homeostasis is controlled by two mechanisms. First one is a negative feedback mechanism and second one is a positive feedback mechanism. ठीक है. तो homeostasis मतलब to maintain a composition of internal environment constant. But in case अगर change हो गया, मतलब कम हो गया या फिर ज्यादा हो गया, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा. सो दैट होमियोस्टेसिस, अल्टरेशन ऑफ होमियोस्टेसिस, अल्टरेशन इन द होमियोस्टेसिस कंट्रोल बाय टू मैकेनिज्म. फर्स्ट वन इज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ओके, एंड सेकंड वन इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. सो इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर चेंज. आपका टेम्परेचर नॉर्मल कितना होना चाहिए बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो वो दैट इज नोन एज अ होमियोस्टेसिस. अगर उसमें मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, तो आपके बॉडी में तुरंत ये मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. सो आपके जहाँ पे जो आपका सेल्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज अ टेम्परेचर सेंसिंग सेल्स. So they will get a sense there is decrease in the body temperature. They will send a signal to your higher center known as a brain, and the brain will process it and it will release the message. Then your skeletal blood vessel will be contracted. Then then there will be shivering. ठीक है, आपको ठंड लगेगी, शिवरिंग होगा आपका, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका. ओके. सो दोज काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स विल बी इन्वॉल्व. देन आप खुद से ही कर्लिंग होगा आपका हेयर्स का, है ना. उसके बाद खुद आप ठंड लग जाएगी तो सम इंटेलेक्ट आल्सो बी एक्टिवेटेड. फॉर एग्जांपल यू विल गेट, आपको ठंड लग रहा है तो आप क्या करेंगे कि आप कोई कंबल ओढ़ लेंगे. सो दैट इज ओके. और जैसे ये टेम्परेचर बढ़ जाता है मोर देन नॉर्मल, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया आपका मोर देन नॉर्मल, so if there is an increase in temperature more than normal, again the same mechanism will act to decrease the temperature. So that is called as negative feedback mechanism, and it is for example for temperature regulation in the body. Then positive feedback mechanism. Positive feedback mechanism किसके लिए? For example oxytocin during labor contraction. तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? नॉर्मली देखो, जब प्रेग्नेंट वुमन होता है तो उसको जब लेबर पेन होता है, मतलब अगर किसी गर्भवती महिला का 9 मंथ का पूरा कंप्लीट हो चुका है उसका बच्चा, तो वो बच्चा सर्विक्स पे आएगा और वहाँ पे वो जो सर्विक्स का मसल है, सर्विक्स का मसल जो उसको क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, मतलब वहाँ पे धक्के मारेगा वो बाहर निकलने के लिए, तो स्ट्रेच होगा वहाँ पे. स्ट्रेच receptors are there and that stretch receptor will send the signal to your higher center. ओके. हायर सेंटर को सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पे स्ट्रेचिंग है, करना है क्योंकि बच्चे को बाहर निकलना है. तो वहाँ पे ब्रेन से आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद वो और ज्यादा स्ट्रेचिंग करेगा एंड बच्चे को बाहर निकलेंगे. ठीक है. और जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग क्या होगा,
कम होगा, स्ट्रेचिंग विल बी मिनिमाइज्ड एंड that signal also be again sent to your brain that stretching is minimal now to stop the production of oxytocin. So जैसे स्ट्रेचिंग होगा तो ऑक्सीटोसिन जल्दी वहां से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, स्ट्रेचिंग चालू हो गया तो ऑक्सीटोसिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा ताकि बच्चा का डिलीवरी हो जाए। ठीक है, जैसे ही बच्चे का डिलीवरी हो गया तो वहां पे स्ट्रेचिंग नहीं होगा, वहां पे सिग्नल जाएगा कि अभी स्ट्रेचिंग नहीं है, अभी स्ट्रेचिंग नहीं होने के कारण आप प्रोडक्शन कम कर दो इसका ऑक्सीजन का। सो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो एग्जांपल याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी पूछ सकते हैं जीपैट के लिए। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दैट इज रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर चेंज और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड labor contraction. During labor contraction, release of oxytocin during labor contraction is controlled by positive feedback mechanism. ये दो याद रखो, ये जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो पढ़ा है वो नहीं था, वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, बट ये जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ hemostatic imbalance result in the illness or disease or threaten health condition or even death. हीमोस्टेसिस जो भी आपके इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का, वो अगर कांस्टेंट नहीं है, उसमें अगर चेंज हुआ, आइदर ज्यादा हो गया या फिर कम हो गया, दैट इज चेंज। सो इम्बैलेंस बिटवीन हीमोस्टेसिस रिजल्ट इन द इलनेस और डिसीज और थ्रेटन लाइफ कंडीशन और इवन डेथ। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो गया, 40-60 हो गया, तो मतलब वहां पे आपका डेथ का चांसेस है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो गया, मतलब 200-250, दैट इज अगेन इलनेस, आपको वहां पे भी आपका लाइफ जान पे बनाएगी। ठीक है, so that is imbalance between hemostasis will result in the illness, disease and threatened condition like or even death. Now here is a again I will explain you the negative feedback mechanism. ठीक है, examples of physiological negative feedback mechanism. For example, ठीक है, आपका बॉडी है मान लीजिए कि आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, आपके बॉडी का टेम्परेचर हो गया कम। ठीक है, आपके बॉडी का टेम्परेचर हो गया कम, अभी क्या होगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर हो गया कम। ठीक है, ये हुआ है आपका बॉडी का टेम्परेचर कम, अभी क्या होगा, इमीडिएटली व्हेन टेम्परेचर विल बिकम लेस देन नॉर्मल, योर आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं, टेम्परेचर सेंसिंग सेल या फिर रिसेप्टर्स जो होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, सिग्नल देंगे किसको, ब्रेन को। ये यहाँ पे ब्रेन होगा, तो ब्रेन को सिग्नल देंगे। सो ब्रेन मीन्स डिटेक्टर, सो डिटेक्टर को सिग्नल देंगे, इट विल सेंड सिग्नल टू कंट्रोल सेंटर। अभी ये कंट्रोल सेंटर जो है आपका, इसको सिग्नल मिलेगा, कंट्रोल सेंटर को इसको सिग्नल मिलेगा क्या, कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है, भाईजान कुछ तो भी करो। तो भाईजान क्या करेंगे, भाईजान करेंगे जो स्केलेटल मसल है उसको रिलैक्स करेंगे। ठीक है, स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी, contraction of your skeletal muscle, then blood vessel of the skin, they will be contracted. Okay, so contraction of blood vessel of your skeletal muscle will result in the shivering, कि अगर कॉन्ट्रेक्शन हो गया ब्लड वेसल का तो उसमें हीट लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगेन जो स्किन का ब्लड वेसल है उसमें नैरो हो जाएगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ताकि हीट लॉस कम हो जाए, सो दैट द वार्म ब्लड विल बी केप्ट इन द कोर ऑफ द बॉडी। देन बिहेवियरल चेंजेस, आपका बिहेवियर भी चेंज होगा। जैसे आप क्या करोगे, ठंड लग रहा है तो यू विल पुट चादर ओढ़ लोगे या फिर कर्लिंग अप। ठीक है, सो दैट विल कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, कि आपके बॉडी टेम्परेचर जो कम हुआ था इसके कारण वो बढ़ जाएगा। ओके, वो नॉर्मल आ जाएगा। जैसे नॉर्मल आ जाता है यहाँ पे ये स्टिमुलेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए कि आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया है। ठीक है, मोर देन नॉर्मल। तो कैसे हुआ, तो आपके टेम्परेचर अगर बॉडी का बढ़ गया है, ठीक है, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा है, तो क्या होगा, तो यहाँ से निगेटिव मैसेज आएगा, किसको, डिटेक्टर को निगेटिव मैसेज जाएगा, तो बोलेगा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, कम करना है। क्या करेगा वो सिग्नल देगा कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल देगा। ठीक है, ब्रेन के, जैसे कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल मिलेगा ब्रेन के, तो वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन दैट इज अ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे ब्लड वेसल का हुआ था उसको रिलैक्स करेगा। अभी यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा, यहाँ पे जो भी है रिलैक्सेशन होगा, ये जो मसल्स है ये सब जो शिवरिंग वगैरह था वो नहीं होगा आपको।
यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बजाय रिलैक्सेशन होगा ताकि हीट लॉस बढ़ सके। ओके, आपके स्वेटिंग होगा, ठीक है, हीट लॉस बढ़ने के लिए सिग्नल मिलेगा, और हीट लॉस बढ़ने के जैसे बढ़ेगा तो आपके बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। दैट इज नोन एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मीन्स टू वे ट्रैफिक। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब क्या? टू वे ट्रैफिक। जैसे आप होता है ना टू वे ट्रैफिक, देन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब वन वे ट्रैफिक। समझ रहा है आपको? डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स फॉर द स्टडी पर्पस दे आर डिस्क्राइब्ड सेपरेटली बट दे आर वर्किंग इंटरडिपेंडेंटली। कि नर्वस सिस्टम अपन अलग से लेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अपन अलग से लेंगे, ब्लड अलग से लेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से लेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से लेंगे, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से लेंगे, बट ऑल दिस सिस्टम दे आर वर्किंग इंटरडिपेंडेंटली, एक में के साथ में ही वर्क कर रहे हैं। सो दो दे विल बी डिस्कस्ड सेपरेटली फॉर अ स्टडी पर्पस बट दे आर वर्किंग इंटरडिपेंडेंटली। नाउ योर बॉडी नीड्स टू सर्वाइव। ओके, आपका जो बॉडी है सिस्टम वर्क हो रहा है, ये क्यों हो रहा है वर्क? So your body system they are working consistently, continuously to survive. Okay, so survival needs and related body activities. So survival needs. So all these system need to be communicated with themselves. जो सिस्टम है हर एक सिस्टम में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। सो कम्युनिकेशन के लिए क्या करना है? कम्युनिकेशन होना चाहिए उसमें। कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सिस्टम होता है? सो टू कम्युनिकेट बिटवीन देमसेल्फ और टू कम्युनिकेट बिटवीन अदर बॉडी पार्ट्स। ओके, वन बॉडी पार्ट टू द अदर बॉडी पार्ट। जैसे हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखा कि सिग्नल कहाँ से आ रहा है? ब्रेन से। सिग्नल कौन भेज रहा है ब्रेन को? कि सेंसेशन मतलब स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। सो देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन दिस टू सिस्टम। ओके, so for that there are different systems for communications. Okay, so for example first one is your transport system. First one is your transport system. Transport system like blood, cardiovascular system and lymphatic system, these are known as a transport system. Then internal communication system, they are example nervous system and endocrine system. Those two system are known as a internal communication system. जो नर्वस सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वो कम्युनिकेशन इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन होता है? जैसे आपका ब्लड का ट्रांसपोर्ट ही करता है ना। किसका ट्रांसपोर्ट करता है? न्यूट्रिशन का, वेस्ट प्रोडक्ट का, विटामिन का, वाटर का ऑक्सीजन का। सो दैट इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब वो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल्सो अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम ट्रांसपोर्ट कर किसका? लिम्फ का। लिम्फ इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। जैसे सेल डिब्रीज होता है, जैसे आपका जो ऑयल, फैट एंड ऑयल है, वो सब लिम्फेटिक सिस्टम से ही एब्सॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। सो देन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सिस्टम है? फॉर एग्जांपल स्पेशल सेंस। आपका जो स्पेशल सेंस का है, स्पेशल सेंसेस, देन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। स्पेशल सेंसेस एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सो दोज आर नोन एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। सो स्पेशल सेंसेस एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी स्पेशल सेंसेस क्या करेंगे? जैसे आपका आई है, आपके आईज है, आपके ईयर है, ठीक है, आपके ईयर, आईज, स्किन है आपका, ठीक है। सो दोज आर नोन एज स्पेशल सेंसेस। तो आईज क्या करेंगे? वो साइड करेंगे आपके आईज, सो स्पेशल सेंस, ठीक है। देन आपका नोज क्या करेगा? स्मेल करेगा, सो दैट इज अ स्पेशल सेंस। सो दैट इज अ कम्युनिकेटर। आपको अगर गंदा स्मेल आ रहा है तो आप क्या करेंगे? ई मुझे बाहर नहीं अच्छा लगता, मैं लेकिन निकल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज अ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। सो दैट इज डन बाय योर नोज, आईज। अगर सामने आपके सामने बहुत ज्यादा आग लगी है, मतलब कुछ जल रहा है बहुत बड़ा, तो उधर थोड़ी जाएंगे आप, नहीं यार क्यों जाएंगे उधर, आग लगी है। तो आपको समझता है कौन दिखता है? आपको आग दिखती है कौन, कहाँ से? आइज से। सो यू आर साइटिंग द फायर एंड यू विल नॉट गो ओवर देयर। You are citing the bad smell, you are smelling the, you are recognizing the bad smell and you will not go in that area. So that is nothing but the special sense. Then again verbal and non verbal communication. So जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको आवाज आ रहा है, so that is a verbal communication. And non verbal मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि present, one two, जैसे हाथ से इशारा कर रहा हूँ, okay. So postural indications, that is known as non verbal communication. So these are the systems for communication. These are the system of communication for the body. ये सब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम है बॉडी के। नाउ नेक्स्ट वन इज इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये इस टाइप से आपके कॉलेज में भी आपको पढ़ाया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं यूनिकली पढ़ाता हूँ।
सो ये कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया होगा आपको. सो इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. ठीक है. तो सर्वाइवल, बॉडी के सर्वाइवल पर्पस के लिए क्या क्या लगता है. सबसे पहले की कम्युनिकेशन लगता है. ठीक है. जैसे आपने मान लीजिए कि आग देख ली है और आपको कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो आप सीधा आग में जाओगे, उधर जाके मर जाओगे. ठीक है. या फिर नीचे गड्ढा है, कुछ गड्ढा दिख रहा है सामने, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो वहां पे जाके गड्ढे में गिर जाओगे. बॉडी नीड्स ए कम्युनिकेशन फॉर सर्वाइवल पर्पस. बॉडी नीड्स ए एनर्जी फॉर सर्वाइवल पर्पस. Body needs a energy, okay, and that energy is given by intake of raw material and removal of waste product. Now for energy purpose, intake of oxygen, okay, for energy purpose, intake of oxygen, ingestion of nutrition and elimination of waste product. ठीक है. So that is for the energy, that is for the energy purpose. So you are इंस्पायरिंग. आप एयर से रेस्पिरेशन कर रहे हो, तो आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो. ठीक है. आप खाना खा रहे हो, सो यू आर इंजेस्टिंग न्यूट्रिशंस. सो दैट इज इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल. ओके. एंड आफ्टर द मेटाबॉलिज्म, आफ्टर द सेलुलर रेस्पिरेशन आपको एनर्जी मिल जाएगा, और उसके बाद में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालेंगे. आप करते करते क्या हो, ऑक्सीजन अंदर लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो, है ना, बाहर छोड़ते हो. उसके बाद आप जो पानी पीते हो वो इसका, उसके बाद में यूरिन निकालते हो. ठीक है. जो खाना खाते हैं उसका क्या बनता है, पीसेस. सो दीज आर नथिंग बट द intake of raw material and removal of waste product. So this is also required for survival purpose of body. Then again for survival purpose of body, protection is required. Protection is required. So आपके बॉडी को प्रोटेक्शन भी लगता है ना जिंदा रहने के लिए. आपके बॉडी को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए, कम्युनिकेशन चाहिए. उसके बाद इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये भी होना चाहिए. उसके बाद में क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल. ठीक है. सो प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल क्या है इसमें कि मान सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जैसे आपका स्किन हो गया. ठीक है. सो दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट. स्किन इज द नोन एज द फर्स्ट लाइन डिफेंस. आपका स्किन जो है दैट इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस. ठीक है. आपका स्किन जो होता है दैट इज नोन एज द फर्स्ट लाइन डिफेंस. ये इंपॉर्टेंट है. एक बार क्वेश्चन भी आया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ द बॉडी. दैट इज नथिंग बट द स्किन. ठीक है. बॉडी के डिफेंस का फर्स्ट लाइन कौन है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, स्किन. जैसे आप आजकल ठंडी है, तो आपको आपको रिकॉग्नाइज कहाँ होता है, स्किन से ही होता है कि ठंडी है, गर्मी है. कहाँ से होता है, स्किन से. अगर आप 0 से कम डिग्री सेल्सियस में अगर आप रिकॉग्नाइज ही नहीं हो आपको ठंडी, और आपको बर्फ में छोड़ दिया, तो आप मर जाओगे वहां. सो फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, स्किन इज द organ. Okay. Then again defense against the microbial infection. So defense against the microbial infection, इसके लिए आपके बॉडी में इम्यूनिटी होना जरूरी है. देयर इज इम्यून सिस्टम फॉर डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन द बॉडी. Okay. So that is again important for survival. Then body movements. So in this body movements, so movement is also important. आपके सामने शेर है, आपके पीछे शेर लगा है, और आप वहीं पे खड़े हो, तो मर जाओगे. भागना तो चाहिए ना आपने. So for the movement of body, you have skeletal-muscular system or musculoskeletal system. So that will help you for locomotion. For survival basis, मतलब आपने सर्वाइव किया, बस उतना ही है. नहीं, आप एक ना एक दिन एजिंग के बाद मर ही जाओगे ना. तो फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, आपका खुद का डीएनए तो जिंदा रहना चाहिए ना. उसके लिए क्या है, कौन सा सिस्टम है आपके, रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक. So for that survival of the species, for that purpose you have reproduction, okay, and transmission of inherited characteristics. मतलब आपका जो डीएनए, हर एक का यूनिक डीएनए होता है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, बाय द रिप्रोडक्शन. ठीक है. सो दीज आर द सर्वाइवल नीड्स ऑफ बॉडी, कम्युनिकेशन, then intake of raw material and removal of waste product, and production and survival. So these are the needs related to body, survival needs. ठीक है. कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सिस्टम है आपका, ट्रांसपोर्ट में आएगा आपका ब्लड, कार्डियोवास्कुलर, लिम्फेटिक सिस्टम. उसके बाद में आपका इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, आपका बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन के लिए नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए आपका स्पेशल सेंस है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. देन इनटेक ऑफ फूड or raw material and removal of waste. For that digestive system is there, respiratory system is there. intake of oxygen कहाँ से लेते हो आप, respiratory system. ingestion of nutrition मतलब digestive system. So there is digestive and respiratory system for intake of raw material and removal of waste. Urinary system is there. Okay. So urinary system, respiratory system and digestive system
These are the system for intake of raw material and removal of waste product. Then for protection and survival, you have skin against protection against the external environment. Skin is there. Defense for the microbial infection, immunity is there. For body movements, skeletal-muscular system is there. And for survival of species, reproduction is there. Okay, so these are the survival needs of the body. Now next, transport system. First one is transport system. So that is nothing but the blood. Okay, first transport system is the blood. So there is around 5 to 6 liters of blood that is normally circulated in the body. आपके बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 से लेके 6 लीटर तक, याद रखो। 5 to 6 लीटर ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द बॉडी यूजिंग ब्लड वेसल नेटवर्क। नाउ ब्लड वेसल कितने टाइप के होते हैं? ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: arteries, then your veins, and then capillaries. So artery will carry blood away from the heart to the organs. Artery will carry blood from heart to the organs. Vein will carry blood from organs to the heart. And capillaries, they will act as an interconnection between arteries and veins. Now, what is blood? Blood is nothing but the fluid connected tissue. We will see detail of the blood in the next lecture. But here is just introductory part. So blood is made up of two components, plasma and blood cells. Okay, blood is nothing but the suspension of blood cells इन द प्लाज्मा। ब्लड क्या है? ब्लड सेल्स का सस्पेंशन है, किसमें? प्लाज्मा। अभी ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ 70% वाटर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर। फॉर एग्जांपल, इन द प्लाज्मा वाटर इज देयर, then nutritions are there, nutritions, plasma proteins are there, then vitamins, minerals, all that, and waste product is also there in the case of plasma. Now blood cells. So blood cells are nothing but they are the different kind of blood cells present in the blood. जैसे आरबीसी हो गया, आपका डब्ल्यूबीसी हो गया, या फिर प्लेटलेट्स हो गए. ओके, सो प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशन एंड waste material, then plasma proteins. Then blood cells are nothing but there are three type of blood cells. First one is known as erythrocytes or known as RBC. Second one is known as leukocytes or WBC. इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं WBC के, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. Then thrombocytes, three टाइप का सेल होता है. Third one is thrombocyte, they are known as a platelets. Now erythrocytes, they are responsible for the transportation of oxygen. So they are, जो भी आपका ऑक्सीजन है हर सेल के लिए जाता है, वो कहाँ से आएगा? आरबीसी से, रेड ब्लड सेल्स. ल्यूकोसाइट्स, दे आर द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी, इम्यूनिटी. डब्ल्यूबीसी क्या है? इम्यूनिटी है. थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? सो थ्रोम्बोसाइट्स, दे आर आल्सो नोन एज अ प्लेटलेट एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अगेन हीमोस्टेसिस. ठीक है, हीमोस्टेसिस, आपका ब्लड एक्सेसिव लॉस ना हो जाए, ब्लड क्लॉटिंग में उसका यूजफुल होता है, किसका? थ्रोम्बोसाइट्स का. ओके, दिस इज अ ब्लड. देन सेकंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नथिंग बट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. You know that cardiovascular system consists of network of different kind of blood vessel. इसमें बहुत सारा नेटवर्क होगा ब्लड वेसल का, इसमें हार्ट भी होगा. ठीक है, सो ब्लड वेसल्स प्लस हार्ट, दैट इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. सो नाउ ब्लड वेसल्स कितने होते हैं? आर्टरीज होता है, सो दैट विल सप्लाई ब्लड टू डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन्स. ओके, वेन होता है, वेन में क्या होता है? इट विल ड्रेन, इट विल ड्रेन द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन टू द हार्ट. Then capillaries, they will supply nutrient to cell and they remove the waste material. They are interlinked between arteries and veins. So this is a blood vessels. Okay, so again we are going to see whole chapter cardiovascular system in the details in upcoming lectures. पहले ब्लड देखेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी देखेंगे. ठीक है, इसमें दो तीन टाइप का सर्कुलेशन होता है. पल्मोनरी सर्कुलेशन, फर्स्ट वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. सो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स. So whatever blood circulation is there in the lungs for exchange of oxygen and carbon dioxide in the alveoli, so that is known as a pulmonary circulation. Okay, three type के circulation होते हैं. pulmonary circulation, then major circulation, चार type के circulation होते हैं, sorry. pulmonary circulation, major circulation, minor circulation, and last one is a portal circulation. ठीक है, then systemic circulation means supply of blood to the other body parts from the heart, that is systemic circulation. It is also known as a major circulation, याद रखो. सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज नोन एज अ मेजर सर्कुलेशन, याद रखो. ठीक है, देन हार्ट क्या है? इट इज नथिंग बट द पंपिंग सिस्टम. ओके, इट पंप यूज्ड टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. हार्ट क्या है? इट इज अ मस्कुलर सैक और वेलोमस्कुलर ऑर्गन दैट विल यूज टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, सो इट हैज अ 4 चैम्बर्स and we are also going to see all the anatomy and physiology of heart in the detail in the cardiovascular system. Okay, so normally क्या है, इसका बीटिंग कितना होता है? सो नॉर्मली हार्ट यूज टू बीट अराउंड 65 to 72 बीट्स पर मिनट. अगर आपने पल्स देख ला, अगर आपने पल्स नोटिस किया, यू कैन नोटिस द पल्स और हार्ट बीट.
by just putting your two fingers in the at the just above the hand. हाथ के वहां पे अगर फिंगर्स रखेंगे तो आपको पल्स मिलेगा आपका. So normal pulse is around 65 to 72. Okay. Now this heart is under involuntary control. जो भी आपके जो भी आपकी कंट्रोल में, जैसे आप आपकी कंट्रोल में है कि आप हाथ उठाना है तो आप हाथ उठा सकते हो, तो दैट इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल. ओके. जैसे आपको मुंडी हिलाना है तो आप मुंडी हिला सकते हो, दैट इज आल्सो अंडर वॉलंटरी कंट्रोल. बट व्हाट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, दैट इज नोन एज इनवॉलंटरी कंट्रोल. ठीक है. जैसे आप बोलते हो ना कि यार नहीं यार, मेरा उस लड़की पे दिल आ गया है, अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा. ऐसा नहीं होता. तो मैं उसको एक ही क्वेश्चन करूंगा कि चल आपने दिल की धड़कन रोक दे. नो बडी कैन स्टॉप हार्ट हार्ट बीट्स. ओके. नो बडी कैन स्टॉप हार्ट बीट. नो बडी कैन स्टॉप रेस्पिरेशन. सो इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, इट इज अंडर इनवॉलंटरी कंट्रोल. आपके कंट्रोल में जो है दैट इज नोन एज वॉलंटरी. ओके. एंड आपके कंट्रोल में जो नहीं है दैट इज नोन एज इनवॉलंटरी. ठीक है. सो दैट इज इनवॉलंटरी, हार्ट इज अंडर इनवॉलंटरी कंट्रोल. सो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है. कुछ कुछ पॉइंट है इसमें भी इंपॉर्टेंट, मैं बोलता हूँ टाइम टाइम. बाकी देन अगेन देयर इज अनदर transport system known as a lymphatic system. Okay. So lymphatic vessels are there in the interstitial spaces between the blood and tissue cells. Okay. So there these lymphatic vessels carry a lymph. Lymph is again a fluid with the cell tissue drain, then plasma proteins, then cell debris like microorganism cell debris. माइक्रोबियल सेल का फैगोसाइटिस होने के बाद जो बचता है डेब्रिस, दैट इज अगेन ट्रांसपोर्टेड इन द लिम्फ. लिम्फ में मैक्सिमम जो फैट होते हैं आपके, जो डाइजेशन के बाद में जो भी लिपिड्स है, लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए लिम्फ, नॉट बाय ब्लड. बाकी सब जो न्यूट्रिशन होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, vitamins, all these are the transported by blood. But lipids and fats, they are not transported by the blood, they are transported by the lymphatic vessels in the form of lymph. Okay. So at the specific intervals there are lymph nodes, lymphatic glands, they are known as lymph nodes. They used to filter the lymph and remove the microbial and other material. So lymphatic system site for maturation of lymphocytes. जो WBC में जो lymphocytes होते हैं उसका lymphatic system is also site for maturation of lymphocytes. ये important है. And lymphocytes, okay, that is nothing but the body's immune cells. WBC are nothing but the body's immune cells. WBC में एक टाइप होता है lymphocyte, उसका maturation होता है आपका lymphatic system. Okay, so these are the transport system. Now next one is a type of blood cell. ठीक है. यहाँ पे blood cell दिखा रहा हूँ आपका. जो रेड यहाँ पे जो दिख रहा है रेड, that is known as RBC. These are known as RBCs. उसका लाइफ स्पेन होता है 120 days. ठीक है. याद रखो. वो उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ये सब बाद में अपन देखेंगे. ठीक है. Then these are yellow is known as a WBCs, white blood cells. Okay. And these pink color are known as thrombocytes. These small pink cell are known as thrombocytes. So these are the erythrocytes, these are the leukocytes, and these are the thrombocytes. Okay. Now lymphatic system, there are different lymphatic vessels. They used to carry cell drainage, tissue drainage. जो वेस्ट मटेरियल ड्रेन जो भी है, मान लीजिए कि सेल का डेथ हो गया तो वो सेल बाहर कैसे निकलेंगे, उसका डेब्रिज जो है वो सब लिम्फ वेसल जो है वो कैरी करता है. सो लिम्फ वेसल कैरी लिम्फ टिश्यू ड्रेन, वेस्ट प्रोडक्ट, देन few high molecular weight plasma protein, then your fats and cell debris, microbial cell debris carries to the lymphatic vessel, and this unite to form a lymph node. lymph node को वो सब कैरी करते हैं और यहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होता है. ठीक है. बाद में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. So that is the lymphatic system, transport system. Now next one is your circulatory system. Circulatory system क्या है कि आपका हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स. ठीक है. जो रेड कलर के दैट इज नोन एज आर्टरीज, जो ब्लू कलर के दैट इज नोन एज वेन्स. सो आर्टरी विल कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी. वेन्स विल कैरी blood from other part of body to the heart. Okay. So that is nothing but the circulatory system. सर्कुलेशन वगैरह वो बाद में देखेंगे अपन, whenever we'll see. Okay. So minor circulation क्या होता है, मेजर सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है. So circulation of blood to the other body parts is known as a systemic circulation. Circulation of blood to the lungs, that is known as a pulmonary circulation. Okay. So now internal communication.
अंदर का कम्युनिकेशन कैसे होता है, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दीज आर द टू सिस्टम, दोज आर कंसर्न विद द इंटरनल कम्युनिकेशन ऑफ बॉडी। अंदर का कम्युनिकेशन करने के लिए दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम इंटरनल और इंडोक्राइन सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम में क्या आता है आपका, सो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, sorry, nervous system consists of two parts. First one is the CNS, okay, central nervous system. First one is the CNS. CNS में क्या क्या आएगा आपका, इसमें आएगा आपका ब्रेन, so which is located in the skull, okay. Then spinal cord, which is extend from base of skull to the lumbar region. आपका जो स्पाइन है उसके अंदर जो कॉर्ड है उसको बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सीएनएस के अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, okay, central nervous system and peripheral nervous system. So in case of peripheral nervous system, sensory or afferent neurons are there. Sensory or afferent neuron, those used to give signal from body to the brain. ब्रेन को कौन सिग्नल देता है, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। देन मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स, दे विल गिव सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू द अदर ऑर्गन, ठीक है। जैसे आपको मैंने चुट्टी काट लिया तो आपको समझ में आता है चुट्टी काट ली, तो कैसे वहाँ के जो एफरेंट सिग्नल है आपके ब्रेन को देता है कि यार कुछ तो हो रहा है, और आपने आपने पैर हटा लिया आपका, तो उसका सिग्नल जो है उसको इफरेंट नर्व्स होती है। सो एफरेंट और इफरेंट नर्व, सेंसरी और मोटर नर्व, सेंसरी नर्व और एफरेंट नर्व गिव सिग्नल टू द ब्रेन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, एंड मोटर और इफरेंट नर्व्स विल गिव सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू द other organ and muscle. We'll see in the detail about nervous system in upcoming lectures. पूरा डिटेल में nervous system क्या है बाद में देखेंगे. Then again there is another somatic sense like pain, touch, heat, cold sensation that comes from specialized sensory receptor. जैसे पेन होता है आपको, दर्द हो रहा है, या फिर आपको टच किया तो आपको समझ में आता है, आपको अगर गर्म हो गया है, ठंडा है, ये सब समझ में आता है। उसके लिए स्पेशल काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर होते हैं एट द नर्व एंडिंग फाउंड थ्रू आउट द स्किन, तो उसको बोलते हैं सोमैटिक सेंस। देन कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व फाइबर, ठीक है। तो नर्व फाइबर मतलब सिस्टम के बीच में तो कम्युनिकेशन होता है, लेकिन सिस्टम के अंदर जो है, सिस्टम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स, तो ऑर्गन्स के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है। ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यू, टिश्यू के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है। सो टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स, ठीक है। सो सेल के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है। सो कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व फाइबर्स आल्सो टेक्स प्लेस वाया केमिकल मैसेंजर नोन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, दे आर द नथिंग बट द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर नथिंग बट द केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। नर्व टिश्यू में एक नर्व से दूसरे नर्व को मैसेज ले जाने के लिए कौन काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर, ओके। नाउ दिस न्यूरोट्रांसमीटर दे आर प्रेजेंट, दे आर सिंथेसाइज्ड लोकली, दे आर स्टोर्ड and released, okay, at the tiny junctions, at the small gap present between the two neurons। दो न्यूरॉन के बीच में जो टाइनी गैप या फिर स्मॉल गैप होता है उसको बोलेंगे साइनेप्स, ओके। सो दैट साइनेप्स is for neurotransmitter. So neurotransmitter are nothing but the chemical messenger between two nerve cells, okay, they are released in the synapse। याद रखो ये इसके ऊपर पूरा फार्माकोलॉजी, सीएनएस फार्माकोलॉजी, एएनएस फार्माकोलॉजी पूरा इसके ऊपर है आपका। देन नाउ रिफ्लेक्स एक्शन, fast and involuntary usually protective motor response to the specific stimuli, fast and involuntary usually protective motor response। फॉर एग्जाम्पल विड्रॉल ऑफ फिंगर फ्रॉम हॉट सरफेस, अगर आप एक जगह पे खड़े हो, आपके दिमाग में कुछ दूसरा ही चल रहा है, और पीछे मतलब आप एक रोड साइड जो स्टॉल होता है, मान लीजिए कि आप रोड साइड आप दाबेली खाने जाओ, वहां पे बैठे हो दाबेली का वेट कर रहे हो, दूसरा ही माइंड में चल रहा है, आपका अचानक हाथ आपका उस दाबेली के जो प्लेट है, तवा जो है उसके ऊपर पड़ता है, जो पैन है उसके ऊपर पड़ता है, तो आपको मालूम भी नहीं होता, लेकिन आपका बॉडी सडनली वहां से विड्रॉ करता है आपका हैंड। सो दैट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्स एक्शन। सो फास्ट एंड इनवॉलंटरी यूजुअली प्रोटेक्टिव मोटर रिस्पॉन्स टू a specific stimuli, that is nothing but the reflex action, that is a protective in nature, okay। अगेन अगर आपके आपके आंखों पे अगर किसी ने बैटरी मार दी या लाइट लाइट डाला, तो आपका जो पिपिल है ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रिक्ट होता है, ओके, और जैसे लाइट निकला वो ऑटोमेटिकली डायलेट होता है। दैट इज अगेन ए रिफ्लेक्स नोन एज अ पिपिलरी रिफ्लेक्स, ओके। देन कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, जैसे आप भाग रहे हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे आप मेरे जैसे बैठे हो तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, दैट इज अगेन अ
blood pressure reflex. Okay, so that is a reflex action. Again, another communication system for internal communication system, that is nothing but the endocrine system. So in this system you have different kind of endocrine glands, and in that gland there are synthesis of different chemicals known as hormones. यहाँ पे कुछ chemical messengers यहाँ पे बनेंगे, उसको बनेंगे hormones that circulate in the body through the blood, and these hormones they have capacity to stimulate the target glands or tissue, टू स्टिमुलेट द टारगेट ग्लैंड टिश्यू। जैसे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसमें हार्मोन्स होते हैं, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, जैसे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है एसीटीएच, वो क्या करेगा, दैट विल स्टिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड टू सीक्रेट इट्स ओन हार्मोन। सो these hormones can stimulate target gland और टिश्यू। जैसे थायरोक्सिन अगर रिलीज करेंगे तो उसका मेटाबॉलिक जो एक्शन होगा वो थायरोक्सिन देखेगा। मतलब हार्मोन्स कैन एक्ट, either they can target the gland, either they can target the tissue. So influence of metabolic reaction, cellular activity, and they also regulate the body growth. Hormone regulation is also controlled by negative feedback mechanism. So this is nothing but the internal communication system again. Okay, now we'll see the next. So this is your nervous system. Okay, this is your nervous system. So it is a brain, then this is a spinal cord, and whatever these are nothing but the nerves. These are nothing but the nerve. So it is known as central nervous system. Brain and spinal cord, that is nothing but the CNS, central nervous system, and various kind of nerves, they are known as a peripheral nervous system. Okay, and this is a nerve cell. Nerve cell होता है, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। इट इज अ न्यूरॉन। नर्व सेल को क्या बोलेंगे, न्यूरॉन। न्यूरॉन हैज ओन डिफरेंट पार्ट्स। न्यूरॉन के पार्ट्स भी होते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। सो डेंड्राइट्स, एक्सॉन वगैरह वगैरह। Now next one is communication between external environment. अब we have seen the communication between internal environment, अंदर के अंदर बॉडी में कैसे कम्युनिकेशन होता है between the systems, वो देख लिए। अभी communication between the external, बाहर के environment में कैसे communication करेंगे। So special sense, जैसे आपका specialized receptor in sensory organ or tissue gives rise to sensation of sight, hearing, balance, smell, taste। जैसे आप में दिख रहा हो, सामने अगर कुछ, मतलब सामने अगर कोई मेरे को पत्थर मारेगा, मुझे दिख रहा है ना, मैं फटाक से साइड में हो जाऊंगा। सो स्पेशल सेंस, सो कम्युनिकेट करता है। सो योर आईज विल कम्युनिकेट सम मैसेज टू योर ब्रेन। okay, so that is known as a communication between external environment। okay, so that is specialized receptor in sensory organ or tissue give rise to the sensation of sight, hearing, balance and smell and taste। so verbal communication, आप जो बात करते हो, that is known as verbal communication। so whatever sound produced in the larynx is known as a voice box। okay, larynx is known as a voice box। during the expiration of air, आप जब सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, सांस जो छोड़ते हो उस टाइम पे, सांस जब छोड़ रहे हो उस टाइम पे क्या होता है कि वो सांस आपके वो जो एयर है वो एयर लैरिंग्स में जाता है, और लैरिंग्स में क्या आता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। सो वोकल कॉर्ड्स और वोकल कॉर्ड का जो मूवमेंट है उससे उससे जब एयर जाता है तो पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस होता है। सो वॉट एवर एयर you are expiring the air from lungs that goes into the larynx, vocal cords vibrate the vocal cords and produces a particular sound। okay, now in humans, in case of human being, this sound is recognizable and this sound is produced by coordinated movement of muscle, throat, cheeks, tongue and lower jaw। जैसे आप बोल रहे हो तो आपका मुंह हिल रहा है ना, अलग अलग टाइप से। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ अलग टाइप से मेरा मुंह हिल रहा है। सो दिस पर्टिकुलर साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय a coordinated movement of your muscle of throat, cheeks, tongue and lower jaw, and that is known as a speech। okay, whatever I am talking with you, that is a speech। okay, so it is a type of verbal communication। now there is another one known as a non-verbal communication। so non-verbal communication कैसे, using a posture। आप जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको हाथ दिख रहा हो, इधर आओ इधर आओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलने की जरूरत नहीं, मैंने अगर ऐसा किया तो इसका मतलब क्या है, इधर आओ। ओके, सो यूजिंग पोस्चर और नोडिंग हेड्स, मैंने नहीं बोला, किसने मेरे को पूछा सर आज फ्री हो गया, मैंने ऐसा किया, मैंने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन मैंने मुंडी हिलाया, उसका मतलब क्या है कि यूजिंग पोस्चर यू आर इंडिकेटिंग समथिंग, यू आर कम्युनिकेटिंग योर मैसेज यूजिंग different posture। so that is known as a non-verbal communication। so using posture, nodding of head, shrugging of shoulder, जैसे shoulder dance करते हो आप shoulder। then intake of raw material and elimination of waste, it is done by using your
रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो एटमॉस्फेयर में आपका 21% ऑक्सीजन होगा, 80% नाइट्रोजन होगा, बट ओनली ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम, ऑक्सीजन इज टेकन एंड इट इज यूटिलाइज। आप बोलेंगे सर 90% और 80% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कैसे नहीं जाता अंदर बॉडी? यस, ऑब्वियसली नाइट्रोजन भी जाता है, लेकिन आपके बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन ही एक्सचेंज होता है। सो ऑक्सीजन इज एक्सचेंज एंड इट इज यूटिलाइज। नाइट्रोजन दो इट इज कमिंग विद द गैस, but though it is coming in the air, but it is not utilized. Okay, oxygen is taken from the nose, that will pass to pharynx, larynx, trachea, to bronchi, bronchioles, and then finally it will reach to alveoli, where there will be a alveolar sac in the lungs, where there will be exchange of gases. Now only utilized in the body, that is oxygen, which is essential for human life because it is needed for cellular respiration. अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो मर जाओगे आप, ठीक है? So oxygen is required for survival and human life, and it is important for cellular respiration. Then it is also again intake of raw material, ठीक है? Ingestion of nutrition, that is nothing but the eating, जो आप खाते हो उससे न्यूट्रिशन आप लेते हो, ठीक है? So nutrient are that are absorbed after digestion. Digestion of food are important for cell building, then growth, repair and to promote the body's function. तो आप जो खा रहे हो, अगर आपने खाना ही नहीं खाया तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, सेल ग्रोथ नहीं होगा, आपका जो डैमेज सेल है वो रिपेयर नहीं होगा, और आपके बॉडी के फंक्शन प्रमोट नहीं होंगे। ओके, सो न्यूट्रिशंस दैट आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम योर जीआईटी आफ्टर डाइजेशन of food, which is important for the cell building, growth, repair and to promote the body function. Okay, so ingestion or nutrition, eating means this process is done by your digestive system. We'll see it in the detail upcoming lectures. Nutrition like water, carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are important for maintaining the water balance in the body. Then provision of fuel, energy, that is energy production, for example carbohydrate and fats. आप जो भी रोटी खाते हो उससे क्या मिलता है आपको? कार्बोहाइड्रेट्स, वो डाइजेशन होकर आपको ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज इज सोर्स फॉर एनर्जी, याद रखो। प्रोविजंस ऑफ फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे आप प्रोटीन खाते हो, प्रोटीन डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड बनता है या फिर पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड के बाद में अमीनो एसिड, दोज आर यूटिलाइज्ड फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है? डाइजेशन इज नथिंग बट द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ योर कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल, ठीक है? आप जो रोटी खा रहे हो, रोटी में क्या है? स्टार्च है, स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, so it is broken down into small molecules, that is broken down into disaccharide, trisaccharide, or then finally monosaccharides like glucose, so which is a source of energy. So starch is broken down into glucose, proteins are broken down into peptides and amino acid, fatty acid is break down into sorry, fats are break down into fatty acids and glycerol. Okay, that is the digestion. Now digestive system consists of alimentary canal. डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब ट्यूब, आपके मुंह से लेके आपके पिछवाड़े तक जो ट्यूब है उसको बोलेंगे अपन एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल इज नथिंग बट मस्कुलर ट्यूब राइट बिगिनिंग फ्रॉम योर माउथ and continues through pharynx, then esophagus, then stomach, small intestine, large intestine, then rectum and finally anus. So these are the part of digestive system. We will see it in the detail when we will see digestive system. जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा इसका। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, उसमें सब ये ऑर्गन रहेंगे, आपका माउथ रहेगा, आपका इसोफेगस, उसके बाद में आपका लैरिंग्स, सॉरी उसमें उसमें रहेगा पैरिंग्स, उसके बाद में इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये सब है। उसके बाद में ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम में और एक है नोन एज एक्सेसरी ऑर्गन, ठीक है? सो accessory organ for digestion, that is nothing but the salivary gland, pancreas, liver, gallbladder. These are important for synthesis and release of digestive enzymes. Okay, so these are the accessory organs, ठीक है? salivary glands, उसमें salivary amylase होता है, उसको टैलिन बोलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। salivary amylase is also known as टैलिन, so it will digest the carbohydrates, so that's why the digestion of carbohydrate start itself in the mouth, ठीक है? आप अगर थोड़ा रोटी ले लो, गरम गरम रोटी, बाकी कुछ मत ले लो, सिर्फ रोटी रखो आपके मुंह में और चबाओ उसको अच्छे से, तो आपको एक स्वीट टेस्ट आएगा। दैट इज ड्यू टू द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, उसको टैलिन भी बोलते हैं। ओके, सो दैट विल डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट इन द सलाइवा इटसेल्फ। सो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम माउथ इटसेल्फ। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा स्टार्च स्टार्च होता है, बाकी जो बचा है वो आपके
इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे पैंक्रियाटिक एमाइलेज वगैरह रहता है. सो दीज आर द accessory organs, salivary gland, pancreas, liver, gallbladder. They are used to synthesize and secrete digestive enzymes for digestion. Now next one is metabolism. So metabolism is nothing but the sum of total of chemical activity of the body, that is metabolism. कि आपके बॉडी में जो भी केमिकल एक्टिविटी हो रहा है, ब्रेकडाउन जो हो रहा है या फिर बिल्डिंग जो हो रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक या ब्रेकडाउन, सो दैट इज नोन एज अ मेटाबॉलिज्म. वो देर आर टू टाइप्स. एनाबॉलिज्म मीन्स बिल्डिंग ऑफ द पॉलीमर और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम मोनोमर्स. ठीक है, जैसे आपके ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, दैट इज अ एनाबॉलिज्म. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म. सो कैटाबॉलिज्म इज अ ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस टू गेट एनर्जी. सो ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनाना, दैट इज कैटाबॉलिज्म. एक एग्जांपल. सो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनाना, दैट इज अ कैटाबॉलिज्म. एंड ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनना, दैट इज एनाबॉलिज्म. ठीक है. सो एनाबॉलिज्म इज एनर्जी कंज्यूमिंग, कैटाबॉलिज्म इज एनर्जी यील्डिंग. ठीक है, याद रखो, इसके ऊपर कंफ्यूज मत होना, अभी बोल रहा हूँ. नेक्स्ट वन इज, सो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका लंग्स, यहाँ पे नोज, ट्रकिया. ठीक है, नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकियोल्स एंड अल्वियोलाई. ओके, ये आपका लंग्स हो गया. जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हो तो कैसे होता है, वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन हो गया. नाउ दिस इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. आपका माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये हो गया येलो कलर का लार्ज इंटेस्टाइन, और ये लीवर, पैंक्रियास, उसके पीछे गॉल ब्लैडर भी होता है. सो ये सब आपका एसेसरी ऑर्गन्स, जैसे लीवर हो गया, पैंक्रियास हो गया. ठीक है, उसके बाद आपका गॉल ब्लैडर हो गया. सो ऑल दीज आर द एसेसरी ऑर्गन्स. ये आपका सलिवरी ग्लैंड हो गया. सो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी. सो ऑल दिस सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द डिटेल इन द अपकमिंग लेक्चर्स. देन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल. नाउ आपने देखा, कंज्यूम भी किया, रिमूवल कैसे करना है. सो यू आर टेकिंग ऑक्सीजन and you are removing the carbon dioxide. So carbon dioxide is the product of cellular metabolism. जो सेल का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज करके बाद में मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. सो इट इज वेस्ट प्रोडक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड इज सेलुलर वेस्ट एंड इट इज एलिमिनेटेड बाय एक्सपायर्ड एयर. जो आप सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, सांस लेते हो तो ऑक्सीजन लेते हो. Carbon dioxide produced by cellular metabolism is removed via expired air in an adequate quantity, in appropriate quantity. ऐसा नहीं कि सब कुछ रिमूव करना है, कुछ क्वांटिटी में ही रिमूव होता है. ऐसा नहीं कि ज्यादा या कम रिमूव करेंगे, ऐसा नहीं. बिकॉज दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द पीएच बैलेंस ऑफ द बॉडी. जो बफर सिस्टम होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनेट बफर. देन यूरिन elimination, urinary system is also one of the elimination method or elimination. So it is found in the kidney. So is nothing but the uh, it is excretory fluid. Okay, so it is made in the kidney, which is a part of urinary system. Urine consists of waste plus water, like waste material like urea, other drugs, metabolite and all that. So जो भी water soluble waste है वो urine से आपको निकल जाएंगे. So under the influence of endocrine system, kidney regulate the water balance and pH of the body. That is a then feces. जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी आप ले रहे हो, जो भी आपका डाइजेशन नहीं हुआ या फिर जो भी रिमेनिंग है वो बाहर निकलता है. सो वेस्ट मटेरियल फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम इज एलिमिनेटेड वाया defecation process through alimentary canal, that is feces. Now protection and survival, last part. Protection against the external environment is done by skin. There is a frontline defense. Skin is a frontline defense. उसका dermis, epidermis वगैरह लेयर होता है. Defense against infection is done by two mechanism. ठीक है, first one is non-specific defense. That is a production of most of the body. ठीक है, मतलब जो भी बॉडी सरफेस होते हैं उसके ऊपर म्यूकस सिक्रेशन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, या फिर गैस्ट्रिक स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट होता है. That is a non-specific defense. And for second one is a specific defense. Specific defense is nothing but the protection against the body का immunity जो है. So whenever there will be antigen inside your body, so your antigen will be neutralized in the body. That is a specific defense. Then movement के लिए आपका skeletal-muscular system होता है, इसके बारे में भी अपन बाद में देख लेंगे. Okay, now this is your urinary system, kidney, ureter, urinary bladder, urethra, ये सब आपका आएगा, बाद में देख लेंगे. मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में आपका स्केलेटल मसल आएगा, टेंडन्स आएगा, बोन्स आएगा. स्केलेटल सिस्टम में बोन्स आएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं स्केलेटल सिस्टम के ऊपर. सो ये बाद में देखिए.
सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, ये बोला है मैंने, सर्वाइवल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, और बाय उसमें आपका आएगा रिप्रोडक्शन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में मुझसे बेहतर आप जानते हो, ठीक है, मेरे से बेहतर आप इससे बारे में जानते हो, आपने पढ़ा होगा। टुमारो विल सी द ब्लड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीपैट एंड नाइपर। जीपैट में देखो हर साल क्वेश्चन आता है ब्लड में से, either they will ask question on blood clotting factors, either they will ask question on lifespan of your blood cells, either they will ask question of deficiency or deficiency means, एक बार क्वेश्चन आया था कि पॉलीसाइथेमिया एनीमिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट डेमो लेक्चर, देयर विल बी अगेन 1 or 2 डेमो lectures will be there free of cost, and after that those who will join the course, those will be added in a different groups, different batch in our application। जो कोर्स है टारगेट जीपैट नाइपर 2023 ऑनलाइन कोर्स, उसके हाइलाइट्स देखो, there will be 8 online lectures per week and Sunday, Wednesday, Saturday 4 to 6 p.m. and Sunday 10 to 12 and 4 to 6 p.m. सब्जेक्ट वाइज लूंगा मैं आपका, पूरा चैप्टर वाइज लूंगा मैं आपका, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, मेरे जो बुक्स वगैरह है। आई एम गोइंग टू टेक अराउंड योर 80% सिलेबस, 80 to 85% सिलेबस मैं अकेला ही लेने वाला हूँ। और एक अपने सर है राहुल सचदेव सर बोल के है, सो ही इज गोइंग टू टेक योर केमिस्ट्री। देयर इज अनदर वन, ही यूज्ड टू टेक लेक्चर ओकेजनली। एक तीसरा भी एक बंदा है, वो कभी कभी लेक्चर लेगा आपका, जैसे कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का। देन अगेन डाउट सॉल्विंग सेशन एंड ऑनलाइन टेस्ट will be there in our application,